السلام علیکم ناظرین، کشمیر نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ کشمیر میں انٹرنیٹ اور پابندیوں سے متعلق عرضیوں پر سپریم کورٹ جمعے کو دے گی فیصلہ۔ امریکی سفیر سمیت 16 سفارتکاروں کا جموں کشمیر کا 2 روزہ دورہ، فوج نے وادی کی صورتحال پر وفد کو دی بریفنگ۔ پی ڈی پی نے 9 سابق ایم ایل ایز کو پارٹی کی رکنیت سے کیا خارج، سفارتکاروں سے ملاقات پر کی گئی کارروائی۔ یورپی وفد شارٹ نوٹس کی بنیاد پر وفد میں شامل نہیں ہو سکا، وزارت خارجہ کے ترجمان کی وضاحت، کہا وادی کے لیے وفود کی آمد جاری رہے گی۔ کشمیر کے مسائل وزیراعظم سے رابطے سے حل نہیں ہو سکتے، مظفر حسین بیگ کی پریس کانفرنس، محبوبہ مفتی کو بھی بنایا تنقید کا نشانہ۔ مرکز کا دوغلا رویہ، سفارتکاروں کے دورے پر کانگریس لیڈر جے رام رمیش کی تنقید۔ 10ویں جماعت کے امتحانات کا کر دیا گیا ہے اعلان، انٹرنیٹ نہ ہونا طلبہ کے لیے مشکل کا بنا باعث۔ یہ تھی سرخیاں اور اب خبروں کی تفصیل۔ امریکی سفیر کے بشمول 16 ممالک کے سفارتکاروں کا ایک وفد آج سری نگر پہنچا۔ پچھلے 4 مہینوں کے دوران بیرون ممالک کا یہ دوسرا وفد ہے جو جمعرات کے روز کشمیر پہنچا ہے۔ 16 ملکوں کے سفراء کا یہ وفد 2 روزہ دورے کے تحت کشمیر پہنچا ہے۔ یہ وفد جمعے کے روز جموں کا دورہ کرے گا اور اس کے بعد دہلی واپس لوٹ جائے گا۔ سری نگر ایئرپورٹ پر ڈویژنل کمشنر کشمیر کے بشمول 15 کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈھلون نے اس وفد کا استقبال کیا۔ تفصیلات کے مطابق مختلف ممالک کے 16 سفارتکار جموں کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ امریکہ، ویتنام، جنوبی کوریا، برازیل، ازبکستان، نائجیریا، مراکش، گھانا، ارجنٹائن، فلپائن، ناروے، مالدیپ، فیجی، ٹوگو، بنگلہ دیش اور پیرو کے سفارتکار اس وفد میں شامل ہیں۔ جمعرات کے روز سخت سیکیورٹی محاصرے میں اس وفد کو سری نگر کے بادامی باغ علاقے میں بادامی واقع فوج کے 15 کور ہیڈ کوارٹر لایا گیا، جہاں فوج کی جانب سے اس وفد کا استقبال کیا گیا اور انہیں کشمیر کی صورتحال سے واقف کروایا گیا۔ اس وفد سے پی ڈی پی کے 9 لیڈران کے بشمول بعض سول سوسائٹیز کے اراکین نے بھی ملاقات کی۔ خیال رہے جموں کشمیر کے خصوصی موقف کے قدم کے لیے جانے کے بعد 29 اکتوبر کو مرکزی حکومت کی جانب سے 23 یورپی پارلیمانی اراکین کے وفد کو رضاکارانہ طور پر کشمیر مدعو کیا گیا تھا اور اس وقت بھی دور تنازع سے دوچار ہو گیا تھا۔ ملک کے پارلیمانی اراکین کو کشمیر جانے سے روک دینے اور بیرون ممالک کے وفد کو کشمیر مدعو کیے جانے پر اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو کڑی تنقیدوں کا سامنا تھا۔ کشمیر آنے والے سفارتکاروں کے وفد سے ملاقات اور حکومتی پروگرام میں شرکت پر کارروائی کرتے ہوئے پی ڈی پی نے پارٹی کے 9 لیڈران جن میں سابق ایم ایل ایز اور سابق وزراء بھی شامل ہیں، انہیں پارٹی سے خارج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پی ڈی پی ترجمان سہیل بخاری نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے اور اپنے 9 لیڈران کے خلاف کی گئی کارروائی سے واقف کروایا۔ سہیل بخاری نے کہا ہے کہ عوامی خواہش و مرضی کے خلاف جانے پر پی ڈی پی نے 9 پارٹی لیڈران کو پارٹی کے بنیادی رکنیت سے خارج کر دیا ہے۔ پارٹی سے خارج کیے جانے والوں میں دلاور میر، رفیع احمد میر، ظفر اقبال، عبدالمجید بڈرو، راجہ منظور خان، جاوید حسین بیگ، قمر حسین اور عبدالرحیم راٹھور شامل ہیں۔ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے جموں اینڈ کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ایک اہم اناؤنسمنٹ آپ تک پہنچائی جائے اور آپ کے ذریعے عوام الناس تک پہنچائی جائے۔ وہ یہ ہے کہ
4 अगस्त 2019 के बाद से जिस तरह के हालात बने हैं, उस पस मंज़र में पिछले चंद दिनों से ये देखा गया कि पार्टी के कुछ रहनुमा कुछ पार्लेज का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि ये वाज़ेह है कि जो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया और उसके बाद ये जो पार्लेज हो रहे हैं, ये सब जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ हैं। और सीधी सी बात है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मंशूर है वो भी उन्हीं लाइंस का है जो कि जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में है। तो ये जो पार्लेज हुई हैं, इनमें जो पार्टिसिपेशन हुई है पार्टी की, इसको बड़ा सीरियसली लिया गया है, इसका नोट लिया गया है। और जो पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी है, उन्होंने इंडिविजुअल केसेस को भी देखा और उसके बिना पे जितने भी लीडर ऐसी पार्लेज में अभी तक शामिल हुए हैं, चाहे वो एक डेलीगेशन जो गया था रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने, या उसके बाद आज भी जो एक डेलीगेशन आया था उनसे मुलाकात हुआ, तो जो कमेटी है उन्होंने रेकमेंड किया है कि इन सभी लीडरों की जो बेसिक मेंबरशिप है पार्टी से, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, उस लीडरशिप ने इन रिकमेंडेशंस को कबूल करते हुए इन सारे लीडर्स की जो प्राइमरी रुकनीत है, मेंबरशिप है, उसको ख़त्म कर दिया है। इनमें जितने भी लीडर शामिल रहे हैं, वो तो खैर आपको पता है, वो सारे लीडर जो पिछली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए एक वफद के का हिस्सा बन के, और आज जो लीडर गए हैं इस नई डेलीगेशन से मिलने के लिए, एक बार फिर मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि पार्टी लीडरशिप की तरफ से ये एक अनाउंसमेंट है कि इसका एक नोटिस लिया गया है संजीदा तौर से, और डिसिप्लिनरी कमेटी ने रेकमेंड किया है कि इनकी बेसिक मेंबरशिप जो है वो ख़त्म कर दी जाए, और पार्टी लीडरशिप ने उस रिकमेंडेशन को कबूल करते हुए इन सारे लीडर्स की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बेसिक रुकनीत है वो ख़त्म कर दी। तो ये नाम कौन कौन से हैं जिनकी प्राइमरी मेंबरशिप को खारिज कर देंगे? देखिए, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि वही नाम, वही लीडर जो इन मीटिंग्स में, इन पार्लेज में जिन्होंने हिस्सा लिया है, वो सारे नाम आपको भी पता हैं और ख़ुद वो जो लीडर हजरात हैं वो भी जानते हैं। तो इन सब की जो प्राइमरी लीडरशिप मेंबरशिप है वो ख़त्म कर दी गई हैं, चाहे वो जनाब दिलावर मीर साहब हों, नूर मोहम्मद साहब हों, ज़फ़र इकबाल मनहास साहब हों, राजा मंजूर साहब हों, चौधरी कमर साहब हों, और जावेद बेग साहब हैं, रफ़ी अहमद मीर साहब हैं, और अब्दुल मजीद पडर और अब्दुल रहीम राथर। ये वो नाम हैं जिन्होंने पिछली 2 मीटिंग्स में हिस्सा लिया है। बेग साहब के नाम पर क्या पार्टी का भी? देखिए, मेरा मैंडेट सिर्फ इतना है कि मैं आप तक वो बयान पहुँचाऊँ, उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ जो अभी तक लिया गया है। बेग साहब के बारे में ना तो मुझे कुछ मालूम है कि पार्टी टॉप लीडरशिप का क्या रुख है, क्या मसले हैं, वो तो खैर वही बता पाएंगे। मेरा मैंडेट सिर्फ इतना है कि मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन से बाखबर करूं, सो मैंने कर दिया। तो अल्ताफ बुखारी के लिए जो कहा गया है कि अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में यह जो डेलीगेशन है वो मुलाकाती हुआ, और ये कहा जा रहा है कि पीडीपी के सीनियर लीडर जो है अल्ताफ बुखारी, क्या अल्ताफ बुखारी अभी पीडीपी के साथ है और क्या वो इस लिस्ट में शामिल है? देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं वो तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स हैं अभी तक, और आज उनकी जो बेसिक मेंबरशिप है वो ख़त्म कर दी गई है। जहाँ तक अल्ताफ बुखारी साहब का सवाल है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आज की डेट में वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं है। जो आज फॉरेन डेलीगेशन आया था उस पर पीडीपी का क्या व्यू है? देखिए, डेलीगेशंस ऐसा तो नहीं कि पहली आई है, कई आती रही हैं, और हमारा तो खैर व्यू यही है कि ये डेलीगेशन आना ना आना ये सब एक कैमोफ्लेज का तरीक़ा है। असल मुद्दा तो ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम पे जुल्म तशद्दुद किया गया है, वो सब करके जो 4 अगस्त को हुआ, ये सब डेलीगेशंस उसी ड्रामे का एक छोटा सा किस्सा हो सकता है, उससे ज़्यादा इसको कोई अहमियत तो खैर क्या ही दी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद नाफिज मौसलाती इम्तनात, इंटरनेट की मसदूदी और दीगर तहदीदात को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 10:30 बजे दिन अपना फैसला सुनाएगी।
जस्टिस एन.वी. रामन्ना, आर. सुभाष रेड्डी और बी.आर. गवाई पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 27 नवंबर को कश्मीर लॉकडाउन के खिलाफ दायर अर्जियों पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भासन, कांग्रेस एमपी गुलाम नबी आजाद और दीगर की तरफ से दाखिल अर्जियों पर समाअत की थी। अर्जी गुजारों ने वादे में इम्तनात को चैलेंज करते हुए कहा था कि शहरियों की आज़ादी पर लगाई गई पाबंदियां सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर खरी नहीं उतरती हैं। इसके अलावा ये भी कहा था कि दस्तूर हिंद की दफा 332 के तहत इमरजेंसी नाफिज के बगैर 3 महीनों से कश्मीर में लॉकडाउन को जारी रखा गया। अनुराधा भासन की तरफ से एडवोकेट वरदा ग्रोअर, गुलाम नबी आजाद की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और दीगर फरकीन की तरफ से सीनियर वकीला हजीफा अहमदी और दोषियंत दावे ने अदालत में अपना अपना मौक़िफ़ रखा था। सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वक्त आ चुका है कि दफा 370 से आगे बढ़ा जाए। साबिक पीडीपी लीडर अल्ताफ बुखारी और JKDPN पार्टी लीडर गुलाम हसन मीर ने आज 16 सिफारतकारों के वफ्द से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों ही लीडरान ने अपने रद्दमल दिए। आज हम जो ये ग्रुप ऑफ एम्बेसडर से मिले तो इट वाज ये वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि 5 अगस्त से पहले क्या था और 5 अगस्त के बाद कैसे हालात है। जैसे उन्होंने खुद भी मुशाहिदा किया, जो चीज़ सच है, सच की बात हुई, ये बात सच है। 370 धारा जब हटी, 35 से जब हटा, हमको दुख है, अभी भी दुख है, दुख रहेगा, ऐसा नहीं है दुख नहीं रहेगा। लेकिन लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए, लोगों की तंगियाँ दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम नहीं इंतज़ार करें कि सुप्रीम कोर्ट का कब फैसला आएगा, क्या आएगा। तब तक हमने कहा कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे लोगों में तशवीश है कि हमारी ज़मीनें जाएंगी, लोगों में तशवीश है नौकरियाँ जाएंगी, हमारे सियासी लीडर दूसरे बंद हैं, हमारे सियासी वर्कर बंद हैं, हमारे बच्चे बंद हैं, इंटरनेट बंद है, हमने सब चीज़ों पर बात की। तो बहरहाल इट वॉज एन एक्सचेंज ऑफ, मैं कहूँगा ये आइडिया एक्सचेंज था। कोई ऐसा तो है नहीं कि इनके पास कोई अथॉरिटी है, वो तो हम ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मसले उठाए हैं। और See, we are here. We have been released some time back. We are making the people's voices out. We are becoming bridge between the people and the government to address their grievances. We are asking for the release of others. When they come out, it will be a bridge between the people and the government so that their grievances are addressed. वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 16 ममालिक के सिफारतकारों के जम्मू कश्मीर दौरे से मुतल्लिक़ कहा कि इसका मकसद कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया को वाकिफ़ कराना है। इस मौके पर उन्होंने इस दौरे से मुतल्लिक़ किए जाने वाले एतराज़ात से मुतल्लिक़ किए गए सवालात के भी जवाब दिए। महदूद बुनियादों पर दौरा को यूरोपीय यूनियन के अराकीन की जानिब से मुस्तरद कर दिए जाने की खबर को उन्होंने गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि बहुत कम वक्त के दौरान उन्हें मदऊ किए जाने पर वो नहीं आ सके हैं, जबकि कश्मीर के लिए इस तरह के दौरे जारी रहेंगे। मेरे पास एक रीड आउट है, एक समूह है 15 एम्बेसडर्स का जो दिल्ली में है। वो 2 दिन की यात्रा पर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विजिट कर रहे हैं। आज उनका प्रोग्राम शुरू हुआ, कल दूसरा दिन प्रोग्राम का होगा। ये जो यात्रा है उनकी, जो विजिट है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भारत सरकार के द्वारा फैसिलिटेट किया गया है। और जो 15 देश के जो एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स इसके पार्ट हैं, उनके नाम हैं यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, फिजी, मालदीव्स, नॉर्वे, फिलीपींस, मोरक्को। आज का जो प्रोग्राम रहा उनका बताना चाहूँगा। आज सवेरे वो यहाँ से रवाना हुए और वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहली जो उनकी मीटिंग हुई वो वहाँ के सुरक्षा कर्मियों से हुई। और उसमें ये हम बताने की हमने कोशिश की कि वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और जो आतंकवाद का जो थ्रेट है उस यूनियन टेरिटरी में वो कितना सजीव है।
اس کے بعد ان کا انٹریکشن ہوا سول سوسائٹی کے سدسیہ کے ساتھ، اور یہ سدسیہ پورے جموں اینڈ کشمیر سے آئے تھے اور ہر ایک چھیتر سے آئے تھے. تیسری جو ان کی میٹنگ ہوئی وہاں کے لوکل میڈیا سے ہوئی، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا، اور اس کے بعد جو وہاں کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن ہوا. جو جانے کا مقصد تھا، ان کو لے جانے کا مقصد تھا، وہ خود جا کے دیکھ سکے کہ پچھلے 5 مہینے میں اگست کے بعد کس ڈھنگ سے نارملسی وہاں آئی ہے، سچویشن نارمل ہوا ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ جو استھانیہ پرشاسن ہے ان کے طرف سے کس ڈھنگ سے اس کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے، وہ بھی ان کو دکھانا ضروری تھا. جہاں تک پروگرام کا سوال ہے، یہ دھیان میں رکھ کے بنایا گیا تھا اور اس کے لیے پختہ انتظام بھی کیے گئے تھے کہ ابھی بھی تھریٹ وہاں ہے، ٹیررزم کا تھریٹ ہے. اسی حساب سے اس کو my sense is that we can have more such programs, more freer interactions with a cross section of the society in Jammu and Kashmir. No, that's what I'm saying, Sridhar. I think there are a number of countries who are not here. I mean, if you ask me to pinpoint why this country was there and that country was not there. No, P5, as I mentioned, that look, this is not the end of the visit. You know, there was a constraint of numbers. Since it was happening at a short notice, it may not have been possible for some ambassadors to kind of get the clearance from the headquarters. And there could be different reasons as well, you know, I mean, scheduling problems. The number which we had was just the right number, and we will see how to conduct such programs in the future. I think it is important to understand that if we see a progressive normalization, if we move towards more normalcy, and if that is taken into account in the programming aspect, we are going to see perhaps more diverse interaction with the groups which will visit Jammu and Kashmir. یو والے بہت سارے، میں تو کون سا نہیں دیکھے. ہاں، اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ایک خبر چل رہا تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتے ہیں کہ یہ گائیڈڈ ٹور ہے، وہ خبر غلط ہے. اور غلط اسی لیے ہے کہ ہماری جو سوچ تھی، ہم نے سب کو انوائٹ کیا تھا، یو ایمبیسڈرس کو، کچھ ایمبیسڈرس کو، کیونکہ ہم ایک ساتھ سب کو انوائٹ نہیں کر سکتے تھے، ہمارے پاس نمبرز کا ریسٹرکشن تھا. یو ایمبیسڈرس اور جو ہمارے یہاں پر ہیں، انہوں نے اس انیشیٹو کو ویلکم بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یو ایمبیسڈرس گروپ میں جانا چاہتے تھے اور ان کا گروپ. سفارتکاروں کے وفد سے ملاقات کرنے والے سول سوسائٹی کے اراکین نے بھی اپنی مختلف رد عمل دیے ہیں. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ افہام و تفہیم سے بھی کام لے اور یہاں عائد مختلف پابندیوں کو ختم کیا جائے. اور جب کہتے ہیں کہ کشمیر میں امن ہو، اور ہم چاہتے ہیں بحیثیت ایک نوجوان کے، ہم نے جب بھی میں کہیں پہ بات کرتا ہوں، ہم 91 کے بورن ہیں، ہم نے کافی بلڈ شیڈ دیکھا ہے، کافی وائلنس دیکھا ہے. ہم نے ارج کیا، ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ بھی مل جل کے ایک کلیکٹیو ایفرٹ لگائیں، اور جو یہاں پہ پیس ہے، پراسپیرٹی ہونی چاہیے. اگر ایو ایک جو ایگزامپل ہے پیٹرن پہ، کہ ہم ساؤتھ ایشیا کیوں نہیں اس حساب سے چل سکتے ہیں جہاں پہ ہمارا جو گروتھ ہو، ہماری جو کلیکٹیو ہو. تو ایسی ہماری بات چیت ہے. نارمل سی ریٹرن کر رہی ہے. دیکھیے، نارمل سی مجھے لگتا ہے ہر ایک کے دماغ میں ہے. اگر آپ کو یہاں پہ نارمل سی لگتی ہے تو نارمل سی ہے. آپ سے پوچھ رہا ہوں. بالکل بالکل. آپ دیکھیں جس طرح سے آج ٹیوشن سینٹر چل رہے ہیں، آج ونٹر ویکیشنز ہوتی ہے، بچے اسکول نہیں جاتے ہیں، جس طرح ٹرانسپورٹ چل رہا ہے، جس طرح دکانیں کھل رہی ہیں، تو بالکل آپ دیکھیں شکارا میں لوگ گھوم رہے ہیں، اور وہ تو بیچارے چاہتے تھے کب یہ گڑبڑ ٹھیک ہو جائے، ہم آئیں کشمیر، ہمارے کافی دوست آئے ہیں. تو ہم اور اپیل بھی کرتے ہیں پوری دنیا میں لوگوں سے کہ آپ پلیز آئیں کشمیر کو. کہتے ہیں پیراڈائز آن ارتھ، آپ آئیں اور ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں.
स्पेसिफिक इश्यूज यही थे कि किस तरह से हमारी ओपिनियंस ले रहे थे कि किस तरह से पीस एंड स्टेबिलिटी को बहाल किया जाए वैली में, और जो आर्टिकल 370 को हटाया गया है उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे उस डिसीजन के, और अब सॉल्यूशंस क्या हैं कि किस तरह से जो है लोगों का दिल जीता जा सकता है, लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि 370 एक काला कानून था, एक ब्लैक लॉ था, ये एक इलेक्शन मैनिफेस्टो था कुछ फैमिलीज़ के लिए, जिसे एक राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन लेके हटाया गया है, और कुछ यहाँ पर जो ख़ानदानी राज था वो ख़त्म किया गया है। तो अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जो एलजी गवर्नेंस आई है या जो मरकज़ केंद्रीय सरकार ने वादे किए हैं, तो अब लोग वेट कर रहे हैं कि वो वादे और दावे कब पूरे होते हैं और किस तरह से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि नॉर्मल सी बहाल। Thank you. जी, जैसा कि आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि दैट यहाँ पे आए, इन्होंने लगा कि दैट ग्राउंड रियलिटी है क्या यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे कश्मीर में हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये, तो आर्टिकल 370 पे बात हुई, तो स्टेट हिट पे बात हुई। तो हमारा कहना ये था कि दैट आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 कहीं ना कहीं हद तक तो लोगों की पहचान थी पहले तो, बट आर्टिकल 370 ये कह सकता हूँ वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था, खोखला हो चुका था। तो पहले जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, आफ्टर दैट पीपल वी थॉट कि दैट समथिंग हैज़ टेकन फ्रॉम अस। So they were just to know the insights of this place. They questioned us on certain things. The first was how they are seeing the development here, the political development after abrogation of 35A and 370. We briefed them. We said government should not engage with the old political establishment now. If government has abrogated 370 and 35A on certain reasons which they gave in the parliament, where they said we will make state corruption free, now if they will again try to sell old liquor in new bottles, that's not going to work. Government at this point of time should engage with the new leadership, with the young people who are not corrupt. पीडीपी के सरपरस्त मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि कश्मीर का मसला वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दबाव से हल नहीं किया जा सकता। मुजफ्फर हुसैन बेग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीर में महरूस तमाम सियासी महरूसीन को रिहा किया जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों को समझने और जम्मू कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात फराहम करने का मरकज़ से मुतालबा किया। मुजफ्फर हुसैन बेग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हुर्रियत पसंदों के बशमूल महबूबा मुफ्ती को भी तनकीद का निशाना बनाया। जो बाकी रहा अब वो छिलका है, उन्हें हासिल। तो दफा 370 के बारे में जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर से बाहर ये राय की जैसे कि ये हिंदुस्तान से अलग होने का एक रास्ता है, आधा हिंद पाकिस्तान बनाने का कोई रास्ता है, जबकि हकीकत में 370 में न कुछ था न बाकी रहा था। कोई 4 मामला थे जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से नहीं था, उन पे कानून नहीं बनाती थी मरकज, बाकी हम सब मरकज के कानून के तहत थे। 1964 में गुलजारी लाल नंदा होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि दफा 370 एक तरफा टनल है, हमें जो कुछ कश्मीर में ले जाना था ले चुके, अब कश्मीर से कुछ वापस नहीं आएगा। बदकिस्मती से हमारे कुछ लीडर जो थे, मकामी पार्टीज के जो लीडर थे, उन्होंने भी कुछ गलतियां की, लोगों को एक गलत इंप्रेशन दिया कि दफा 370 से हमारा अलग वजूद हो गया, हम बिल्कुल अलग हो रहे हैं। आखिर कश्मीर में एक वक्त तो महाराजों का डोगरों की हुकूमत थी, फिर बदल गए, पंडित जी की इधर रखा, आधार उधर रखा, जिसकी वजह से हालत बदल गई। और जम्मू जो मरकज था, जम्मू मरकज जो था वो मरकज नहीं रहा, कश्मीर मरकज था, अब नहीं रहा। अब जम्मू और कश्मीर वाले दोनों आप एक ही इसमें
जो कभी जम्मू कश्मीर में एक चीज जरूर है कि कुछ लोगों को जेल में बंद रखा, कुछ को हाउस अरेस्ट। मैं हाउस अरेस्ट ये तो मैं अस्पताल में था, हाउस अरेस्ट रहे, वकील रहे, फारूक साहब यूएई ने वहां मंदिर बनाने के लिए इसके सामने मंदिर बना, पत्थर वहां लगाए, इतना इन्होंने हालात ठीक कर लिए थे। लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके, वॉशिंगटन पोस्ट से लेके, डेली टेलीग्राफ लंदन से लेके दुनिया में आज सवाल पूछा जा रहा है कि ये लोग जो गिरफ्तार हैं 107 में, इन्होंने तो आपके कहने पे इलेक्शन लड़ा, मुकाबला किया, आप बताओ इन्होंने चोरी किया तो केस चलाओ, चोरी नहीं की, देशद्रोही नहीं है तो उनको छोड़ दो। किसी को 2 को छोड़ते हैं, कभी 3 को गवर्नमेंट मिल के दे सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको स्टेट का दर्जा कैसे वापस दे सकते हैं? डोमिसाइल राइट आर्टिकल 371A में है, उसका फैसला भी सिर्फ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और हिंदुस्तान के हुकूमत मिल के वो अगर फैसला चाहे तो कर सकते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने सिफारतकारों को जम्मू कश्मीर के दौरे करवाए जाने पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत बैरूनी सिफारतकारों को कश्मीर जाने की इजाजत दे रही, लेकिन इसके बरअक्स उसने मुल्क के सियासतदानों को कश्मीर जाने से रोक दिया है। इस तरह मरकज की मोदी सरकार ने कश्मीर के मामले में दोगली पॉलिसी को अपनाया हुआ है। जी किशन रेड्डी ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम है। ममलिकती वजीर बराए दाखिला अमूर जी किशन रेड्डी ने 16 सिफारतकारों के दौरे जम्मू कश्मीर पर हुकूमत की जानिब से सफाई देते हुए इस पर किए जाने वाले एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सूरत हाल पर बाज़ अफराद ने दुनिया को गुमराह किया है, ताहम हुकूमत चाहती है कि कश्मीर में किस तरह का अमन व अमान है इससे वाकिफ करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सिफारतकार जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कश्मीर के ताईं पाकिस्तान के रोल को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। फाइनल नहीं हुआ है, जो भी दुनिया के जो भी लोग अभी, क्योंकि कुछ लोग भारत के ही लोग विदेश में जाकर गलत प्रचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर ये है, जम्मू कश्मीर के अंदर कर्फ्यू है, जम्मू कश्मीर इमरजेंसी है, जम्मू कश्मीर एक बड़ा जेल बन गया, जम्मू कश्मीर में लोग बाहर नहीं घूम रहे, खाना नहीं खा रहे, हवा नहीं पी रहे, ऐसा बहुत गलत प्रचार कर रहे। जम्मू कश्मीर देश में सभी प्रांतों से अगर तुलना के तो सबसे ज्यादा शांति जिधर भी है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। सबके ज्यादा शांति जम्मू कश्मीर में। इसलिए हम सभी टूरिस्ट को, दुनिया के टूरिस्ट वालों को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स को, भारत के लोगों को जो वातावरण खराब नहीं कर सकते हैं, वैसे लोग जो भी आइए, देखिए, वास्तविकता सुनिए। हम भी आने वाले दिन में पूरे लोग, भारत के मंत्रियां, भारत के पॉलिटिकल पार्टी, मगर लोगों को भड़काए नहीं, क्योंकि पाकिस्तान प्रयास कर रहे वास्तविकता खराब करने के लिए, शांति खराब करने के लिए। इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए कोई उधर काम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का भाषा ना बोलते हुए जो भी पॉलिटिकल पार्टी उधर आ सकते हैं। मेरा दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का भाषा, पाकिस्तान के इमरान खान जो बोलते हैं, हमारे राहुल गांधी भी जो वही भाषा बोलते हैं, इसके लिए हमारे को परेशान है। उनको वो लोग घर में रह के भी सोशल मीडिया में खिलाफ भाषण दे रहे हैं, हाथ का निकाल देंगे, फायर निकाल देंगे, ऐसा बोल रहे लोग। इसके लिए उनको थोड़ा शांति, उनको भी शांति रखना चाहिए, अच्छे हेल्थ ठीक होना चाहिए। इसके लिए वो को अंदर रखे हम वो निर्णय नहीं करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार, हमारा नहीं। केंद्र सरकार निर्णय ले लेते हैं। प्रिवेंटिव अरेस्ट जो भी जम्मू कश्मीर में हुआ है, केंद्र सरकार का निर्णय नहीं है, वो जम्मू कश्मीर का सरकार का निर्णय है। जो भी प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है, अभी जेल के अंदर होगा, घर के अंदर होगा, घर में प्रिवेंटिव अरेस्ट करके, वो जम्मू कश्मीर का निर्णय है, नरेंद्र मोदी जी का सरकार का निर्णय नहीं है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर अब करप्शन से पाक हो चुका है। मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने एक बयान में कहा है कि अब तक जम्मू कश्मीर की जितनी भी क़यादतें रही हैं, उन्होंने अपने मुफादात के लिए काम किया है और जम्मू कश्मीर की आवाम के मसाइल को पसे पश्त डाल दिया गया। नकवी ने दावा किया है कि अब जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ रवा दवा है। करप्शन करने वाली क़यादतें अब जम्मू कश्मीर में हाशिए पर जा चुके हैं।
अमरीकी सफ़ीर के बशमूल 16 सिफारतकारों की श्रीनगर आमद के मौके पर श्रीनगर में सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त किए गए थे। ताहम सिफारतकार फौज चंद सियासी कायदीन और मुंतखबा सिविल सोसाइटी अरकान से मुलाकात के बाद जम्मू के लिए रवाना हो चुका। जम्मू में बीजेपी की जानिब से CAA की तायद में एक रैली निकाली गई। रैली की सरबराही बीजेपी लीडर व रुकन पार्लिमान जंगल किशोर शर्मा ने की। ख्याल रहे बीजेपी मुल्क गिर सतह पर CAA कानून की तायद और इस हवाले से मालूमात फराहम करने के लिए मुहिम चला रही। भारतीय जनता पार्टी का OBC मोर्चा जो है उसने आज एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन जहां पर किया है। रशपाल वर्मा जी और बाकी लोगों के नेतृत्व में हम भी उसमें शामिल होने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जुद्धवीर सेठी हों, राजेश गुप्ता जी हों, बाकी लोग हों। कारण यही है कि CAA जो एक्ट बना है हम सब उसके समर्थन में हैं, देश समर्थन में है, विश्व समर्थन में है। लेकिन कांग्रेस और अपोजिशन के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं और वो निराधार विरोध है। इंसानियत के नाते उनको सिटीजनशिप दी गई है और जम्मू कश्मीर हो चाहे पूरा देश हो, भारत का किसी भी अंग में रहने वाला कोई भी नागरिक जो है उसको इस बिल से कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। अगर इसका किसी को लाभ है तो वो उन्हीं भाइयों को है जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं और वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में आए थे और इसका किसी को भी कोई नुकसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा और मुल्क में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि वो शहरियत तरमीमी कानून CAA से मुंसलिक अर्जियों की समाअत उस वक्त तक नहीं करेंगी जब तक इस सिलसिले में मुल्क भर में जारी तशद्दुद रोक नहीं जाता। चीफ जस्टिस शरदा रविंद्र बोबड़े ने यह तबसरा उस वक्त किया कि जब वकील पनित कुमार ढंडा ने CAA को आईनी करार देने के ताल्लुक से अपनी अर्जी का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। जस्टिस बोबड़े, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अर्जी में किए गए मुतालबे पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर कानून अपने आप में आईनी ही माना जाता है, इसको आईनी करार देने की जरूरत नहीं। अलबत्ता कोर्ट का काम उसकी आईनी जवाजियत को परखना है। जस्टिस बोबड़े ने ढंडा से कहा है कि आप एक वक्त कानून के तालिब इल्म रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहली बार मैंने इस तरह की दरख्वास्त सुन रहा हूँ। अदालत उज़्मा को कानून की आईनी जवाजियत पर धुंध हुई है, ना कि उसे आईनी करार देना होता है। इन दावों का मुश्किल दौर से गुजरना है और मुल्क भर में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस तरह की अर्जियों से मसले का हल नहीं हो सकता। डंडा ने इस CAA की हिमायत में अर्जी दायर की है और इन सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने का मुतालबा किया है, जिन्होंने बदनामी फैलाने में किरदार अदा किया है। अर्जी गुजार ने CAA को आईनी करार देने का भी अदालत से मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि CAA की आईनी जवाजियत को चैलेंज करने वाली 60 अर्जियां अदालत में दायर हुई हैं, जिन पर गुज़िश्ता बरस 18 दिसंबर को अदालत ने मरकज़ को नोटिस जारी किया था। इस माह के तीसरे हफ्ते में उन अर्जियों पर समाअत होनी है।
जनता दल यूनाइटेड के लीडर जीएम शाहीन ने सिफारतकारों के जम्मू कश्मीर आमद पर अपना रद्दमल दिया। जीएम शाहीन ने कहा कि उन्हें ये महसूस नहीं हो रहा कि जब तक जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट हेड नहीं मिलेगा तब तक कोई भी क़यादत अपनी सियासी सरगर्मी अंजाम नहीं दे सकते। जैसे भी मामला चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर और जिसे हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से, और सबसे जो बदनसीबी वाली बात है जो मामला यहाँ चला, यूरोपीय यूनियन का यहाँ पर आना, डेलीगेशन का यहाँ पर आना, तो आप या जो ऐसी जो कुछ ऐसी पार्टियाँ जो इंडिपेंडेंट लोग मिलके लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल रहे हैं या कोई ऐसी उथल पुथल करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इलेक्शन का एक पार्टिसिपेशन बने, लेकिन कहीं ना कहीं या तो वो किसी न किसी सीबीआई वाले केस में मुलवस है और वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। हमें नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तब तक कोई एक्टिविटी करेगी जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ऐसे कोई एक्टिवेशन करना दैट मीन्स वो इस कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी आदमी हो जो भी इलेक्शन की पार्टिसिपेट कर रहा हो, क्योंकि हमने साफ बात कही है कि आपने ऑन द फ्लोर ये कहा कि भाई आफ्टर 370 को हटाने के बाद कि भाई हम स्टेटहुड को वापस देंगे। तो स्टेटहुड को जब कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वापस देने की, तो इसमें विदाउट स्टेटहुड को इलेक्शन लड़ने का क्या मतलब? ये लोग जो कहीं ना कहीं या बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपना सर झुका रहे हैं इन लोगों के सामने, बहुत गलत है और कौम इनको बिल्कुल नहीं बख्शेगा। हमने ये कहा कि स्टेटहुड आप वापस दे दीजिए, हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि विदाउट स्टेटहुड कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करना बेमाने रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। महकमे पीडीडी में खिदमात अंजाम देने वाले डेली वेजर्स ने आज तिराल में धरना दिया और हुकाम से मुतालबा किया कि उनकी रुकी हुई तनख्वाहें फौरी तौर पर जारी की जाएं और दीगर देरीना मुतालबात को पूरा किया जाए। सारी डिमांड पुलिंग कर और सठा मुसीबत बच्चे वो अयाल वो वनकस हालात तमें हेकान एफर्ट पन जिंदगी कर इसलिए गवर्नमेंट गुजारिश कर तम कर सान डिमांड हल तो नो ड्यूटी पर इंशाअल्लाह। कश्मीर डिवीजन के तलबा की 10वीं जमात की सालाना इम्तिहानात के नताइज जारी कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्टेट एजुकेशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नताइज जारी किए। ख्याल रहे नताइज के जारी किए जाने की खबर मिलते ही श्रीनगर में मीडिया सेंटर पर तलबा का हुजूम देखा गया, जबकि उन्हें काफ़ी मायूसी का सामना रहा। इसी तरह की सूरत हाल दूसरे मुकामात से मिली है। तलबा ने अपनी मुश्किलात का इजहार किया। देखिए, हम खुश थे कि रिजल्ट्स निकलेंगे, बच्चे खुश होंगे, लेकिन क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बार बार कहा था कि हम मोड चेक कर रहे हैं, हम तलाश कर रहे हैं कि कैसे हम रिजल्ट निकालेंगे, कैसे हम लड़कों को सहूलत देंगे, कैसे हम स्टूडेंट्स को सहूलत देंगे। लेकिन आज जब रिजल्ट निकला कोई सहूलत ही नहीं है, कोई सहूलत नहीं। ना उन्होंने इंटरनेट ऑन किया था, ना उनके पास पेपर नहीं। अरे कैसे निकला? अगर उन्होंने रात को निकला होते या दिन में सुबह निकलते तो कम से कम सब अपना पेपर चेक करते। ना पेपर पे उन्होंने दिया, ऐसे ही उन्होंने कहा सुबह से ही रिजल्ट से कुछ मोड्स नहीं रखे उन्होंने। कैसे चेक करेगा? जो हमारा मीडिया सेंटर है उसमें हम भी कुछ काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनका रिजल्ट चेक करते हर साइड से फोन पे फोन थे। ना हमारा काम हुआ, ना हम उनके कुछ काम आए।
देखिए एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कम से कम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो एक पावरफुल डिपार्टमेंट है. उनको चाहते कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते कि कम से कम इनको ब्रॉडबैंड तो छोड़ दीजिए ताकि जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, इनको कुछ सहूलत मिलती है. इस सर्दी में उनको वहां पर भी बेचारे कहीं भी वहां भेजते कभी यहाँ भेजते, क्या करेंगे वो? अभी पता नहीं क्या कर सकते. शाम तक वो बस फोन पे लगे हुए, हमारा चेक कीजिए, हमारा चेक कीजिए. ना ही चेक कर सकते हैं, ना ही. यार गवर्नमेंट को चाहिए प्लीज अब बहुत हो गया, बहुत आपने पनिशमेंट दिया, बहुत ज्यादा पनिशमेंट दिया आपने कश्मीर को. आप प्लीज अब इंटरनेट रेस्टोर कीजिए. उधर कुलगाम के यारवार DH पुरा के मकामी लोगों ने पिछले 2 हफ्तों से पीने के पानी की अदम सरबराही के खिलाफ महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया. उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि उन्हें वक्त पर पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए. गुजारिश करान आब कहें गड़ वसान आड़स मज अमिस लग दाबन अमिस फुट कमर बार मुश्किलात वातान योतन ना सन ना पाइप ना कह चीज ये कहें वक्तस अगर बेमार ग गाड़ ते कहें मुश्किलात गो बराबर 4 वरी ये पुरसान कुन ना सन कह काल वन पुरसान तुलन अफसरन काल दपान है पगह वात न पाइप त्रो लन यपर पे कुन मकलियम ना पाइप ना ट्रांसफार्म ना पावर ना बी कम से कम गई 20 वरी अक वरी गो ना तथ पे गए दमहाल तपर यपर गए बाकी मतलब वाटर सप्लाई वालन मतलब दोक ना हुकूमत ना क्या करो तो इथे पे सोरे गाँव आड़ मज आब खान सान कोड़न लड़कियां दब लगन तो कहीं नु कुन अम खतर गए कहीं बिल्कुल बिल्कुल मतलब ब्रो कुन दिवन पाइप ये आब कोड़ वसन आड़स मज आब अन्न कबर फुट गेज फुट दब जल लग अकिस कोड़ लोग दब सो बिचार अंदर कन सोन मसाई नलकन पाइप कुन गई 2 वरी इथे कटस कुछ सात नोश कुर सोद आड़ मज आब खाड़ वक्स बन वसन नृकन जल गई क्या जल गई ये पुरसान कुन वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के दरमियान रात के दर्जे हरारत में एक बार फिर कमी वाक़ई हुई है, जिसके बायस लोग रात भर शदीद सर्दी से दो चार हैं. ताहम दिन में मौसम न सिर्फ खुश्क रहा बल्कि सूरज की किरणें भी बादलों के दरमियान जाहिर हुई. महकमे मौसमियात ने वादी में 11 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है. ताहम 12 और 13 जनवरी को मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है. उधर वादी को मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह जुमेरात के रोज ट्रैफिक की नकल व हमल के लिए खुली रही. ताहम श्रीनगर ले शाहराह और तारिकी मकल रोड साल गुज़िश्ता के माह दिसंबर से मुसलसल बंद है, जिन पर अब माह अप्रैल में ही ट्रैफिक बहाल होना मुमकिन है.
जवाहर टनल के दोनों जानिब आज तीसरे दिन भी ट्रैफिक मसदूद रही, जिसके नतीजे में रास्ते में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई बताई गई है। ख्याल रहे शदीद बर्फबारी और जमीनी तोदे व चट्टाने खिसक आने के बाद सड़क को 3 रोज कबल बंद कर दिया गया था। सफाई का काम अगरचे जारी है, लेकिन सड़क को ताहाल ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं किया जा सका। दख्तर सर, मैं सब्जी वाली गाड़ी है मेरी, और मैं अमृतसर से भर कर आया। मेरे साथ की गाड़ी जो अभी श्रीनगर पहुंच गई। जब हम उधमपुर में पहुंचे, कुछ गाड़ी ने 5-5 हज़ार दिया, इन्होंने लिया, वहाँ से पैसा लिया, गाड़ी छोड़ी। जब मैं भी इनको पैसा दे रहा था, इन्होंने मेरी गाड़ी वहाँ से छोड़ी, हमारे आगे इन्होंने नाका लगा दिया। अभी छोड़ेंगे, आपको 9 बजे सुबह क्लियर कर देंगे, वो कर देंगे। अब इन्होंने फिर हमें 3 दिन रखा वहाँ पे, वहाँ से छोड़ा। अभी आगे हम यहाँ पे अपना चलैनी में 1 दिन वहाँ पे रहे। फिर कल हमें सुबह वहाँ से छोड़ा तो हम पहुँचे बनाल में। हम कल पहुँचे 4:30 पौने 5 बजे यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं हमने मशीनरी लगाई है, पर हम काम कर रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। वो टाइम ये टाइम आ गया, अभी तक कोई किसी ने हमें नहीं पूछा नहीं अभी तक। तो सब्जी वाली गाड़ी है मेरी सर, मेरी गाड़ी तो पूरी माल जल गया बीच में। तो क्या आज मैं यहाँ की इंतजामिया जो है? सर हमें तो यही है, हमें क्या करना है, हमें तो छोड़ दें आगे। हमें कहीं व्यापारी का माल है तो उसको तो पहुँचा। जी, मैं काजीगुंड का रहने वाला हूँ। हम दिल्ली गाजीपुर से बकरा बार के आते हैं बकरा गाड़ी के साथ। आज हमें 7 दिन हो गए रास्ते में। बकरा गाड़ी की कोई मतलब सुनवाई नहीं है किसी भी जगह। लगभग उधमपुर से लेके सांबा से लेके यहाँ बनाल तक बकरा गाड़ी को हर नाके पे पीछे पीछे रोकते, क्योंकि अगर इंसान एक टाइम का खाना नहीं खाएगा तो उसका क्या हाल होता है। ये जानदार चीज़ है, इनको पानी भी चाहिए, खाना चाहिए, इसलिए बकरा गाड़ी को रोकते हैं। ये क्या वजह है? इस वजह मैं इंतज़ामिया से पूछना चाहता हूँ, बकरा गाड़ी को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि जबकि एक लाइन में 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 10 में से 4 सब्जी वाली छोड़ दी या दूसरे सूखे वाली गाड़ी 4 छोड़ दी, तो बकरा को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ये क्या? मैं इंतज़ामिया से यही अपील है कि खासकर बकरा गाड़ी का ध्यान, क्योंकि ये जानदार माल है, कोठीदारों का माल है, हराम का माल नहीं है। ये खरीद के लोग बढ़ते हैं, ये भी पैसे से खरीदा हो। कल बर्फबारी जो है जेटी पे तकरीबन 1 और 1.5 फीट के बीच में थी। इसके बाद जो है रोड को हमें पूरे दिन क्लियर करते रहे, लेकिन ये बार बार जो सर्दी की वजह से बर्फ़ जम रही थी। हमने कल एक अटेम्प्ट किया, अराउंड 50 हैवी मोटर व्हीकल्स और 100 के आसपास लाइट मोटर व्हीकल्स हमने क्रॉस किए, लेकिन काफ़ी समस्या आने लगी। फिर हमें थोड़ी देर के लिए गाड़ियाँ रोकनी पड़ी। रात को कुछ गाड़ियाँ वापस करके 800 के आसपास लाइट मोटर व्हीकल्स हमने यहाँ पे रोकी हुई है बनियाल में। अभी जस्ट नाउ रोड थ्रू हुआ है और हमने गाड़ियाँ छोड़ी हैं, लेकिन बर्फबारी अब दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो लेट अस सी, हमारी कोशिश है कि ये गाड़ियाँ हम 1 बजे से पहले हम इनको कश्मीर वाली साइड जो है क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हमारा तो यही रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि वेदर फोरकास्ट देख के अपना आइन बॉल फेडरेशन ने नेशनल चैंपियनशिप में कामयाबी हासिल कर ली है। ताहम इस मौके पर ऑल सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर की सरबराही में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई, जिसमें खिलाड़ी भी मौजूद रहे, जिन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी देरीना मांगें पूरी की जाएं। उन्होंने उन्हें मुलाजिमतों की फराहमी का मुतालबा किया। हो गया था एंड सेकंड नेशनल जो पहला मैच हो गया था वो लीग मैच में वो बिहार के साथ हो गया था और हरियाणा के साथ हो गया, वो इन्होंने दोनों जीते थे। उसके बाद ये सुपर 6 में पहुंच गए, वहाँ पे इन्होंने झारखंड को हराया और एक टीम आसाम को भी हराया। उसके बाद इनका सेमीफाइनल लग गया। सेमीफाइनल में थोड़ी टक्कर इन्होंने आसाम के साथ ही शायद सेमीफाइनल बिहार के साथ सेमीफाइनल खेला था, और फाइनल जो इनका लगा था पिछले साल के रनर अप के साथ लगा था, जो केरला की टीम थी, जो पिछले साल के रनर अप रह चुकी है फर्स्ट आयरन बॉल नेशनल चैंपियनशिप की, तो उनको इन्होंने 50 पॉइंट से हरा दिया था। जम्मू कश्मीर की मैं ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल फेडरेशन में इनसे एक यहाँ पे इनको बोलना चाहूँगा, पूरे जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के जो हमारी सोसाइटी है, कि हमें जो नए बच्चे जो है में कल ही हमारे एक क्रिकेट प्लेयर रणजी ट्रॉफी का एक समद बेटा है, उसने भी सेंचुरी 63 बॉल्स में की है। इतनी कैपेसिटी है हमारे बच्चों में। अभी एक और चैंपियनशिप कल एक और लेके आई है, कनाई वाटर गेम्स है वो, उसकी भी चैंपियनशिप हमारे किसी बच्चों ने हासिल की। मैं इससे बड़ा सफाई से कहूँगा, देखिए आप लोग सब देखा है स्टेडियम हमारा जो बना हुआ नया, आपको मालूम है कि उस स्टेडियम में जो सड़क कम से कम 10 फुट चारों तरफ से काटी गई। अगर रियासत में इस चीज की समझ होती कि अगर फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर।
کشمیر میں انٹرنیٹ اور پابندیوں سے متعلق عرضیوں پر سپریم کورٹ جمعے کو دے گی فیصلہ۔ امریکی سفیر سمیت 16 سفارتکاروں کا جموں کشمیر کا 2 روزہ دورہ، فوج نے وادی کی صورتحال پر وفد کو دی بریفنگ۔ پی ڈی پی نے 9 سابق ایم ایل ایز کو پارٹی کی رکنیت سے کیا خارج، سفارتکاروں سے ملاقات پر کی گئی کارروائی۔ یورپی وفد شارٹ نوٹس کی بنیاد پر وفد میں شامل نہیں ہو سکا، وزارت خارجہ کے ترجمان کی وضاحت، کہا وادی کے لیے وفود کی آمد جاری رہے گی۔ کشمیر کے مسائل وزیراعظم کے دباؤ سے حل نہیں ہو سکتے، مظفر حسین بیگ کی پریس کانفرنس، محبوبہ مفتی کو بھی بنایا تنقید کا نشانہ۔ مرکز کا دوغلا رویہ، سفارتکاروں کے دورے پر کانگریس لیڈر جے رام رمیش کی تنقید۔ دسویں جماعت کی امتحانات کا کر دیا گیا اعلان، انٹرنیٹ نہ ہونا طلبہ کے لیے مشکل کا بنا باعث۔ اسی کے ساتھ کشمیر نیوز اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔